Hello class, today we will do chapter 6, Towns, Traders and Craftsmen. In this chapter we will study about growth of urban centers, types of urban centers, inland and foreign trade यानी कि अपने देश में तो ट्रेड करना ही करना, इसके अलावा विदेश में जाकर भी ट्रेड करना, crafts and technology, and then we will do the case study of Hampi. The medieval period witnessed the emergence of various towns and cities. Initially, towns and cities in India developed as religious and pilgrimage centers such as Banaras, Puri, Mathura and Allahabad. तो मिडिवल पीरियड में वो समय था जब टाउन्स और सिटीज़ बन रहे थे, सिटीज़ बन रही थी, डेवलप हो रही थी. शुरुआत में सिटीज़ और टाउन्स बन रहे थे ऐसी जगह जो पूजा पाठ के लिए थी, धार्मिक स्थल थे. ओके, बनारस, पुरी, मथुरा टाइप. Some cities gained importance as centers of administration. New towns emerged around the cantonments and seats of governments. Lastly, given the importance of trade and commerce, there emerged commercial towns or trade centers such as Lahore, Surat and Mirzapur on the trade routes. तो पहले धार्मिक स्थल की वजह से वहाँ पर सिटीज़ डेवलप हो रही थी. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिटीज़ बनने लगी. अब व्यापार के लिए सिटीज़ बनने लगी थी. Let us now study about the development of these urban centers during the medieval period. Now, growth of urban centers. The Mughal court documents on land grants and revenue assessment provide us information on the towns that existed during the Mughal period. तो जितनी भी ग्रांट्स थी, दान उस टाइम दिए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे ज़मीन के नाम पर, जगह के नाम पर, और रेवेन्यू कलेक्ट होता था. तो वहाँ पर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुग़ल पीरियड के टाइम से ही टाउन्स बनने लगे थे. Besides the official documents of the Mughal Empire, many travelers' accounts give us information on the development of towns and urban centers. For example, the Moroccan traveler Ibn Battuta described Delhi as not only being a city of enormous extent and population but also being the largest city in Islamic East. तो जैसे कि इब्न बतूता ये मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में आए थे और इन्होंने दिल्ली को डिस्क्राइब किया था, दिल्ली के बारे में बताया था कि ये एक इस्लामिक सिटी है. He also stated that during Muhammad bin Tughlaq's rule, approximately 15% of the population lived in urban areas. इसके अलावा उसने ये भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 15% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि अर्बन एरियाज में रह रही थी. Now, types of urban centers. Urbanization differs from region to region. The existing socio-economic dynamics influence the character of urban development taking place in a particular region. तो पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम हुआ करता था. Many towns developed on the basis of the purpose they served. Some towns also developed into urban centers due to their geographical locations. For example, being near the sea, some cities developed into new port cities and major trade centers. तो पहले उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है कि वो किस जगह पर हैं, इसके अलावा वहाँ पर क्या काम होता है, इस बेसिस पर टाउन्स बना करते थे. पहले क्या होता था, पूरा का पूरा टाउन एक जो क्राफ्ट वाले होते थे, हैंडीक्राफ्ट वाले होते थे, उनका होता था. फिर अगर कोई समुद्र के पास है, सी के पास है, तो वहाँ पर पोर्ट सिटीज़ बना करती थी. Usually, towns are categorized into several types like a temple town, an administrative town, a commercial town, port town and so on. तो पहले जिस टाउन में जिस टाइप का काम हुआ करता था उसी बेसिस पे उस टाउन की पहचान होती थी. जैसे कि अगर कहीं पर टेम्पल्स हैं तो वो टेम्पल टाउन हो गया, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, कहीं पर बिजनेस होता है तो वो कमर्शियल टाउन हो गया, कोई टाउन अगर सी या ओशियन के पास है तो वो पोर्ट टाउन हो गया. There were many towns that combined several functions and operated as administrative centers, temple towns, and were also famous trading centers. Hampi was an urban center that was multifunctional. तो जब हम हम्पी की केस स्टडी करेंगे तब इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो मल्टीफंक्शनल था. It was the capital of Vijayanagar Empire. Hampi also had a large number of temples and it was also an important commercial center. तो यहाँ पर टेम्पल्स भी थे और कमर्शियल सेंटर भी था, यहाँ पर बिजनेस भी होता था. Where spice and cotton trade took place on a large scale. यहाँ पर होता था
मसालों का और कॉटन का बिजनेस। इसके अलावा टेम्पल भी थे, तो हुआ ना मल्टी फंक्शनल। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, capital cities such as Delhi, Agra and Aurangabad developed as administrative centers as the day-to-day supervision took place from the capital। देखो जैसे आज हमारी राजधानी दिल्ली है, हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, ओके। तो इसी तरीके से पहले भी जो राजा थे, जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, सुल्तान थे, वो भी अपनी एक कैपिटल बनाया करते थे जहाँ पर वो रहा करते थे और वहाँ से वो अपने पूरे एरिया को सुपरवाइज करते थे। तो ऐसी सिटीज़, ऐसी जगह जो जिन्हें वो अपनी कैपिटल बनाते थे, उनको हम बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। क्यों? क्योंकि उस जगह से वो अपने सुपरविजन को किया करते थे। These centers were famous as capital towns that functioned as the seats of kings or emperors, who also patronized cultural activities like poetry and painting. The royal army was also stationed in the forts of such towns। तो इसके अलावा यहाँ पर रॉयल आर्मी भी रहा करती थी। भाई जहाँ पर राजा रहेगा, जहाँ पर एम्परर रहेगा, वहाँ रॉयल आर्मी तो रहेगी ही। For example, during the reign of Akbar, 3 different cities developed as his capitals at different times। देखो उसने अपनी कैपिटल चेंज की, अलग अलग समय पर उसकी कैपिटल अलग अलग थी, जैसे कि आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। नाउ टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी कि धार्मिक स्थल, ऐसे टाउन्स जहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। जैसे कि आपने देखा होगा मथुरा में मंदिर है, बनारस में भी मंदिर है। इसके अलावा आप देखना ये काशी, वाराणसी, यहाँ पर भी मंदिर हैं। हालांकि अब तो सब जगह पे सब काम होते हैं, पर इस टाइप के जो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर होते थे, उनको टेम्पल टाउन्स की तरह फेमस किया जाता था। टेम्पल टाउन्स emerged when rulers gave grants of land and money to build temples to show their religious devotion। तो टेम्पल टाउन्स तब बनते थे जब जो रूलर्स होते थे वो दान दे देते थे ज़मीनों को मंदिर बनवाने के लिए। देखो जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, सुल्तान थे, वो मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। तो इसी तरीके से कुछ रूलर्स, कुछ एम्परर्स ऐसे भी थे जो मॉस्क और टेम्पल्स बनवाया करते थे अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए। उसके लिए वो ज़मीनों को ग्रांट में दिया करते थे। पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज हु विजिटेड दीज प्लेस ऑल्सो मेड डोनेशंस। इसके अलावा जैसे हम लोग आज भी जाते हैं मंदिर वगैरह में तो दान देते हैं, तो उस समय पर भी जो ऐसी जगहों पर जाते थे, मंदिर मस्जिदों में जाते थे, वो लोग भी दान दिया करते थे। The temple towns soon developed into significant centers for multiple social, economic, cultural and religious activities. Gradually, priests, artisans, workers, garland makers, traders and many other people associated with temple activities settled near the temples। तो एक मंदिर का सीन याद करो। जब आप मंदिर जाते हो तो क्या होता है, पास में पूजा पाठ की एक दुकान होती है जहाँ पर सामान मिलता है पूजा वगैरह का, मालाएं मिलती हैं, फूल का काम होता है ना, और कपड़ों की भी शॉप लगा लेते हैं। तो इस टाइप का उस समय पर फिर जो टेम्पल होता था उसके आसपास इस टाइप का जो शॉप्स होती थी वो बनने लग जाती थी। टेम्पल्स ऑल्सो बिकेम द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। वहाँ देखो पहले हमने जब पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो पहले की पढ़ाई होती थी वो टेम्पल्स में होती थी। सम पिलग्रिमेज सेंटर्स ग्रेजुअली अर्बनाइज्ड इनटू टाउनशिप्स। Towns such as Vrindavan, Mathura, Somnath, Ajmer and Tirupati became essential temple towns or pilgrimage centers। Now commercial towns, ऐसे towns जहाँ पर business होता था। Commercial towns developed along essential trade routes। शेर शाह सूरी built the Grand Trunk Road to encourage the trade and commerce within the country। अपनी कंट्री में ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जिसको जीटी रोड से नाम से भी जानते हैं। Many rulers built sarais and rent houses along the road sides, which gradually developed into commercial towns। तो सराय भी बनाए जाते थे। सराय मतलब जैसे कोई राहगीर जा रहा हो तो वो वहाँ पर फ्री में कुछ टाइम रह सके। रेंट हाउसेज भी बनाए जाने लगे और उसके आसपास लोग बसने लगे। कमर्शियल टाउन्स लाइक मथुरा एंड बयाना फ्लरिश्ड बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन अलॉन्ग द फेमस ट्रेड रूट्स। तो मथुरा और बयाना जैसी जगह पर अब बसने लगे थे लोग क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रूट था, यानी कि व्यापार करने का रास्ता था। अब जो टाउन्स होते थे आपके सी के पास, ओशन के पास, तो उनको बोला जाता था पोर्ट टाउन्स।
Since ancient times, India had trade contacts with other countries with increased overseas trade activity with Southeast Asia, West Asia, China, and Europe. Towns like Surat, Bhuj, Cambay, Calicut, Cochin, and Masulipatam emerged as significant port towns to accommodate the increasing foreign trade. तो ये सारे जो नाम आपको दिए गए हैं ये सब आपके पोर्ट टाउन्स में इंक्लूड होते हैं. नाउ क्राफ्ट टाउन्स यानी कि जहाँ पर कलाकारी होती थी. डिफरेंट क्राफ्ट सेंटर्स डेवलप्ड इनटू फेमस क्राफ्ट टाउन्स. Indian artisans excelled as weavers, metal workers, carpet makers, shoe makers and many other crafts. तो हमारा जो हस्तकला थी, हस्तकला मतलब हाथों से ये सब चीज़ें बड़ी सुंदर सुंदर बनाते थे. इवन हाथों से बनाए हुए कारपेट, साड़ीज़, शूज़ आज भी पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया के फेमस हैं. इंडिया वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स. About 150 types of cotton clothes were produced in India. 150 टाइप के कॉटन के कपड़े हमारे इंडिया में बनाए जाते थे. The Panchals and Vishwakarma communities consisting of goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, masons and carpenters played an important role in the construction of palaces, significant buildings, tanks and reservoirs. तो जो हमने पुराने चैप्टर में बिल्डिंग्स पढ़ी भाई उनके लिए भी तो हमें आर्टिसंस चाहिए. तो ये सब के सब एक जिस टाउन में बसते थे उसको हम बोलते थे क्राफ्ट टाउन्स. इन सब का अपना एक खुद का टाउन होता था जहाँ पे सब इस टाइप के कलाकार, इस टाइप के आर्टिसंस रहा करते थे. टाउन्स लाइक बनारस एंड कांचीपुरम डेवलप्ड ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ देयर टेक्सटाइल. कांचीपुरम साड़ीज, कांचीपुरम का कपड़ा आज भी फेमस है. नाउ फाउंडेड टाउन्स. Some towns came into existence because they were founded by some rulers or powerful people. तो नींव रखी जाती थी उस समय टाउन्स की. तो कुछ टाउन्स ऐसे भी फेमस थे जिनकी नींव कुछ फेमस रूलर्स ने, कुछ फेमस किंग्स ने रखी थी. Prior to their development as towns, these urban centers would have existed in the form of only villages. तो पहले टाउन बनने से पहले ये सिर्फ एक छोटे छोटे गांव हुआ करते थे. जब रूलर्स की नज़र ऐसे छोटे मोटे गांवों पर पड़ी और उन्होंने उसमें आबादी लाए, उसमें डेवलपमेंट किया तो वो फाउंडेड टाउन्स के नाम से फेमस होने लगे. जैसे कि द एंटायर कैपिटल टाउनशिप ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड बाय अकबर इन ऑनर ऑफ द सूफी सेंट सलीम चिश्ती. जैसे सलीम चिश्ती को ऑनर करने के लिए उन्होंने क्या करा, पूरे के पूरे फतेहपुर सीकरी को स्टैब्लिश कर दिया. शाहजहानाबाद इन दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां. दूसरा एग्जाम्पल हो गया शाहजहां ने जो शाहजहानाबाद सिटी को डेवलप किया था. नाउ इनलैंड एंड फॉरेन